Hello students, this is video 2 on Python NumPy. In this video, I will tell you how to create a 1D array and a 2D array. Students, there are various methods to create an array in Python NumPy, but in this video, I will discuss one method, which is array method, for creating a 1D and 2D array. Now, first I am telling you how to create a 1D array. So let's discuss the steps for creating a 1D array. The first step for creating a 1D array is you have to import the Python NumPy library. In my last video, in the first video on NumPy, I told you how you can install the NumPy library in your system. So after installing the NumPy library, when you create a 1D array, so in the Python program, the very first statement is to import the NumPy library. So this is the first step. The second step is the array will contain elements. So those elements in the array will be passed through Python list. Means you have to create a Python list first, and this list will be passed to the array method of the NumPy library, and based on the list elements the array will contain the values. So these are the two steps for creating a 1D array. Now I have created a simple Python script, a 1D array. So this is the Python script where I have created a one-dimensional array with the name A1, and this A1 array is created using the array method of the NumPy library. In this script, what I have done, I have created an array and then I have shown how we can print the elements from the array, and if we want to change any element in the array, how we can change it. So let's discuss how this program is created. The very first thing, as discussed in the steps that we have done before, that the very first thing is you will import the NumPy library, and this library can be imported only when it is already installed. So this library is imported and is given an alias name np. In 11th class also we have done some modules. जैसे हमने मैथ मॉड्यूल करा था, तो मैथ मॉड्यूल के हमने कुछ फंक्शंस यूज करे थे, स्क्वायर रूट किया था, ठीक है, सम किया था, तो वो कुछ हमने जो फंक्शंस डिस्कस किए थे. तो इन द सेम वे NumPy लाइब्रेरी है, और NumPy लाइब्रेरी को आप एलियास नेम दे सकते हो. एलियास नेम का सिर्फ पर्पस इतना होता है कि हमें बार बार NumPy लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली np से हम इस लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में रेफर कर सकते हैं. सो ओनली दिस इज द थिंग. सो वी हैव इंपोर्टेड एंड देन गिवन द एलियास नेम. देन सेकेंड स्टेप था हमारा कि हमें लिस्ट क्रिएट करनी है, बिकॉज लिस्ट एलिमेंट्स विल बी कंटेन्ड इन द एरे. तो हमने एक लिस्ट क्रिएट करी with values 1, 2, 3 and 4. So these are the 4 elements in the list 1. अब इसके बाद array method यूज़ किया है हमने, जो NumPy लाइब्रेरी का है. जैसे हमने 11th क्लास में मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट किया था और उसके फंक्शंस यूज़ करे थे कि हम डॉट नोटेशन से we can access the methods of a particular मॉड्यूल और लाइब्रेरी. तो यहाँ पर हमारा मॉड्यूल NumPy है जो np से हम रेफ़र कर रहे हैं, तो उसका मेथड एरे एक्सेस कर रहे हैं बाय यूजिंग द डॉट नोटेशन.
और उस एरे मेथड में आपका लिस्ट वन पास हो रहा है. So based on these list elements, this A1 array is created. Because this list is containing only a single row of values, so this A1 is also containing a single row. So single row of values means 1D array. If I want to check the index of the items, so as the indexing is done in the list, the same way indexing is done in the array also. The index for the first element is 0, second element is 1, third element is 2, and fourth element is 3. So the same indexing is followed in case of array also. So our array is created with the name A1 containing 4 elements and created with the help of array method of the NumPy library. Now I want to print the array element. So I have passed the statement print A1. It is printing 1, 2, 3, 4 without any comma separator. You can find out the difference in the representation of array and list. यहाँ पर हमने ये प्रिंट करा है array और ये प्रिंट किया है लिस्ट को. तो जब हम array प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई कॉमा नहीं है बीच में, means there is no comma separator in between, but when we are printing the list there is a comma separator in between. Means array तो सबको एक collection मान के चल रहा है, all the elements are treated as one collection, but in case of list they are separated by comma. So this is the difference in their representation in Python. Now next thing is, आपको अगर क्या करना है, किसी भी इंडेक्स को किसी भी एलिमेंट को प्रिंट कराना है अपने एरे में से, तो हम उसके इंडेक्स के थ्रू उसको प्रिंट करा सकते हैं. एरे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप इंडेक्स देंगे तो इट विल प्रिंट द आइटम एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स. हमने 0 इंडेक्स दिया है, 0 रेफर कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट को, तो यहाँ पर उसने 1 प्रिंट कर दिया. फिर हमने इंडेक्स 3 दिया है, इंडेक्स 3 फोर्थ एलिमेंट को रेफर कर रहा है और एलिमेंट की वैल्यू भी 4 है, तो यहाँ पर 4 प्रिंट कर रहा है. सो दिस इज हाउ आई कैन प्रिंट द elements at a particular index in the array. The next thing that I have shown here is, अगर आपको कोई भी एलिमेंट अपने एरे में चेंज करना है, तो अगर आपको चेंज करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप उसका इंडेक्स देंगे जिसकी वैल्यू आपको चेंज करनी है. हम यहाँ पर इंडेक्स 2 पर वैल्यू 3 है, तो उसको चेंज कर रहे हैं टू 35. तो यूजिंग इक्वल्स टू ऑपरेटर यू कैन चेंज द वैल्यू. तो हमने वैल्यू 3 की जगह 35 कर दी, तो जब हम उसको प्रिंट करा के देख रहे हैं तो इट इज़ शोइंग 35. पूरा एरे अगर हम प्रिंट करते हैं तो वहाँ पर भी आप चेंज देख सकते हो. द वैल्यू इज चेंज फ्रॉम 3 to 35. So this is how the array can be created and the value can also be changed and printed. Up next we are on creating a NumPy 2-dimensional array. 2 dimension means it is referring to rows and columns. आपका 2D array जो होता है वो आपकी डाटा वैल्यू स्टोर करेगा in rows and column format. It has 2 dimensions. Now let's discuss the steps for creating a 2-dimensional array. The first step is again the same. आपको फिर से NumPy लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है अपने प्रोग्राम में. जब तक आप NumPy लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो फंक्शंस डिफाइंड है NumPy लाइब्रेरी में वो आप यूज़ नहीं कर सकते. So this is the first step. Whichever array you are creating, whether 1D or 2D or 3D. पाइथन में जो आप एरे क्रिएट करते हैं उनको हम ND arrays भी कहते हैं. ND array means n dimensional arrays.
So this technique of creating array is also known as ND arrays. अब सेकेंड जो स्टेप है हमारा वो है, पहले आप क्रिएट करेंगे नेस्टेड पाइथन लिस्ट। 2D एरे के लिए आपको नेस्टेड पाइथन लिस्ट चाहिए। नेस्टेड मीन्स लिस्ट ऑफ लिस्ट। जब 1D एरे बनाया था तो 1D आपका 1 डायमेंशन मीन्स एक सिंगल लाइन में ही आपकी वैल्यूज होती हैं। बट इन केस ऑफ 2D, तो 2D मीन्स रो एंड कॉलम फॉर्मेट में आपकी वैल्यूज होती हैं। तो आपको रो भी चाहिए, कॉलम भी चाहिए, तो उसके लिए आपको नेस्टेड पाइथन लिस्ट बनानी होगी। और जो नेस्टेड पाइथन लिस्ट आप बनाएंगे दैट विल बी पास्ड टू द एरे मेथड ऑफ द numpy library. So these are the two steps for creating a 2D array. Let's again view them in Python IDLE. Now here these are the steps for this in this script I have created a 2-dimensional array, and also shown how you can print the value, and if you wish to change any value how this can be done. So let's discuss the script. The output is also shown here, and how the arrays how a 2D array indexing is done, this will also be discussed. तो 2D एरे बनाने के लिए सबसे पहले आपको वही सेम numpy लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी होगी अपने प्रोग्राम में। और ये 2D एरे बनाने के लिए अगेन आई हैव टेकन द एरे मेथड। हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनमें मैं बाकी के मेथड्स डिस्कस करूँगी फॉर क्रिएटिंग अ एरे। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है विद द नेम list1, जिसमें आपकी नेस्टेड लिस्ट स्टोर्ड है। तो ये जो आपकी यहाँ पर फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लिस्ट है, दिस इज फर्स्ट रो, और ये जो सेकंड लिस्ट है दिस इज सेकंड रो। फर्स्ट लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं मीन्स 3 कॉलम्स हो गए। सेकेंड लिस्ट के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स 3 कॉलम्स हो गए। तो दिस लिस्ट इज कंटेनिंग 2 rows and 3 columns each. अब यहाँ पर हमने एरे मेथड के अंदर ये नेस्टेड लिस्ट पास कर दी, तो एक एरे क्रिएट हो गया विद द नेम A1। ये आप कोई भी नेम दे सकते हो एरे का, वट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव और स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, सो दैट नेम यू कैन स्पेसिफाई हियर। तो अब A1 एरे क्रिएट हो गया विद 2 rows and 3 कॉलम्स। जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये यहाँ पर नीचे इस तरीके से आउटपुट शो करेगा। ये देखो, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दिस इज़ द फर्स्ट रो एंड दिस इज़ द सेकेंड रो। ये आपकी कॉलम वैल्यूज़ हो गई। अब हम इसकी इंडेक्सिंग देखते हैं, ये 2D एरे की इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है। नाउ हियर यू कैन सी आपकी 2 रोज हैं, हॉरिजॉन्टली रोज होती हैं और वर्टिकली कॉलम्स होते हैं। तो जो फर्स्ट रो है उसका इंडेक्स है 0 और जो सेकंड रो है उसका इंडेक्स है 1। देन इफ आई चेक द इंडेक्स फॉर द कॉलम, दिस इज द फर्स्ट कॉलम और इसका इंडेक्स हो गया 0। ये सेकंड कॉलम है, इसका इंडेक्स हो गया 1 और ये थर्ड कॉलम है, इसका इंडेक्स हो गया 2। राइट, तो ये आपके रो एंड कॉलम इंडेक्स हो गए। अगर मुझे एलिमेंट्स का इंडेक्स देखना है, क्योंकि अगर आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट प्रिंट कराना है तो आपको उसका इंडेक्स पता होना चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स देखूं तो उस एलिमेंट की इंडेक्सिंग आपकी रो और कॉलम के इंडेक्स से पता लगेगी। तो दिस फर्स्ट एलिमेंट इज एट 0th row and 0th column,
तो इस 4 एलिमेंट का इंडेक्स होगा 0, रो, सॉरी 0, 0। पहले रो का इंडेक्स आता है, फिर कॉमा के बाद कॉलम का इंडेक्स। अब इसका सेकेंड एलिमेंट का इंडेक्स देखें तो अगेन इट इज़ ऑन 0th रो एंड 1th कॉलम, तो 0, 1। सपोज इस लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स देखना चाह रही हूँ मैं, तो ये आप देख पा रहे हैं कि द इंडेक्स फॉर दिस रो इज़ 1 एंड द इंडेक्स फॉर द कॉलम इज़ 2, तो मीन्स ये हो गया 1, 2। सो दिस वे आई कैन फाइंड आउट द इंडेक्स। लेट्स कम बैक टू द प्रोग्राम। अब ये नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट है। यहाँ पर हम एलिमेंट प्रिंट करा रहे हैं एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स, तो ये है 0, 1। जब भी हमें प्रिंट कराना है तो इन स्क्वायर ब्रैकेट वी विल स्पेसिफाई द इंडेक्स। पहले आपका रो का इंडेक्स आ रहा है, देन कॉलम का इंडेक्स आ रहा है, तो रो इंडेक्स रेफर कर रही है 0th रो को, इस वाली रो को, और ये जो कॉलम इंडेक्स है ये आपका रेफर कर रहा है कॉलम इंडेक्स 1, मीन्स इस वाले कॉलम को, तो 0th रो एंड 1 कॉलम, तो मीन्स वैल्यू 5, तो इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया 5। नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट देखें 1, 2, तो फर्स्ट रो सॉरी सेकेंड रो और आपका कॉलम इंडेक्स है 2, तो ये हो गया, तो वैल्यू हो गई 3, तो आउटपुट में आ गया 3। सो दिस इज द वे हाउ इट विल रिट्रीव द एलिमेंट्स by using the element indexes। अब हमें 2D एरे में किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पर एलिमेंट की वैल्यू चेंज करनी है, तो फिर से वही हम इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं, रो और कॉलम इंडेक्स, और उसके बाद इक्वल्स टू के बाद वी कैन चेंज द वैल्यू, वी कैन गिव अनदर वैल्यू। तो you can find out that index plays an important role। तो अब इसने वैल्यू 35 कर दी। जब हम एरे प्रिंट कर रहे हैं आफ्टर द चेंजेस, सो इट इज़ शोइंग द चेंज्ड वैल्यू। तो 0, 2, 0 मीन्स ये हो गई, इस रो को रेफर कर रहा है, 2 मीन्स कॉलम, तो ये जो 6 है इसकी जगह अब यहाँ पर 35 हो गया। आप ऊपर देख सकते हैं पहले 6 प्रिंट हो रहा था, अब चेंज होने के बाद 35 हो गया। सो दिस इज़ हाउ you can create an array and print the element and change the value। I hope this is clear। Thank you all, and in this video I have covered only one method for creating an array, which is array method. For more on NumPy, watch my more videos on NumPy, in which I will be covering more methods.